Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. The writer has seen children barefoot throughout the country. The writer has traveled through many places in the country. The explanation normally given is that it was their tradition to remain barefoot. It was not lack of money. Writer feels it an explanation or excuse to hide their नेवर इंडिंग पॉवर्टी। अब क्या होता है, ये जो राइटर हैं तो बच्चों को थ्रो आउट कंट्री क्या देखती हैं, बेयरफुट, बिना चप्पल का। ये जो राइटर है ना, तो बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे जगह पे ट्रैवल करती रहती हैं। तो जो इनको एक्सप्लेनेशन मिलता है, कई जगह ये पूछते भी हैं कि स्लीपर क्यों नहीं पहना, तो इनको जवाब में एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि बिना चप्पल का रहना ट्रेडिशन है, ना कि मतलब पैसे की कमी के वजह से, यानी कि चप्पल नहीं पहनना ये ट्रेडिशन है, लैक ऑफ मनी नहीं है। राइटर को ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी पॉवर्टी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि मतलब ये चप्पल ना पहनना हमारा ट्रेडिशन। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. Writer recalls a story told to her by a resident of Udupi town. During young age, he used to go to school after crossing a temple. His father was priest at that temple. In his prayers, the boy used to ask for a pair of shoes. अब क्या होता है कि ये जो राइटर हैं वो एक स्टोरी रिकॉल करती हैं, जो कि इनको उदीपी टाउन का जो एक रेजिडेंट था उसने बताया था कि जब वह यंग था तो स्कूल जाता था तो रास्ते में एक टेम्पल पड़ता था। फिर उसी टेम्पल के जो प्रिएस्ट थे, पुजारी थे, तो उसके फादर थे। तो वो जब जाता था टेम्पल में तो प्रे क्या करता था कि वो एक पेयर ऑफ शूज चाहता है, यानी कि गॉड से वो जूते मांगता था वो इंसान। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. After 30 years, writer went to the same temple. The temple was in ruins. There was no activity. In the back of the temple, new priest used to live. There were red and white chairs. अब ये बच्चे वाली स्टोरी वो रिकॉल करती हैं। फिर क्या होता है, 30 साल बाद जो राइटर हैं सेम टेम्पल में जाती हैं। अब क्या होता है, अब वो टेम्पल ड्यून हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। वहाँ पे अब उस टेम्पल में पहले जैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, और उसके पीछे न्यू प्रिएस्ट जो था वो रहता था, और वहाँ पे रेड एंड वाइट कलर की चेयर्स थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. A boy came to the backyard. He was young. He was wearing grey uniform, socks and shoes. He was taking quick breaths. He threw his bag on the folding bed. Writer recalled another boy. That boy had prayed to the goddess that he should always have shoes. क्या होता है कि ये जो राइटर हैं तो मतलब वहाँ गई हुई है टेम्पल पे, ये सारी अब कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके पीछे एक प्रिएस्ट का घर है जो न्यू वाले प्रिएस्ट हैं। फिर बैकयार्ड से एक लड़का आता है और वो छोटा बच्चा है, एक ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना होता है, सॉक्स और शूज़ पहना रहता है। अब वो जल्दी जल्दी आ रहा होता है तो वो पैंटिंग कर रहा होता है, यानी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होता है। फिर वो अपना बैग क्या करता है, फोल्डिंग जो बेड रहता है उसी पे पटक देता है। फिर राइटर वो बॉय को याद करती हैं जो आता था टेम्पल में और शूज़ मांगा करता था, तो उसको, इस बच्चे को देख कर राइटर को वो वाला बच्चा याद।
The goddess had granted his prayer. Young boy like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. The goddess had granted wish of that boy. Now son of the priest wears shoes. Earlier priest did not wear shoes. Either they used to be barefooted or wear wooden chappals. But even today rag pickers in neighborhood of the writer did not have shoes. अब ये राइटर उस बच्चे को देखती हैं, फिर पहले वाला बच्चा याद आता है, फिर कहती हैं जो गॉडेस हैं उन्होंने इस बच्चे की विश पूरी कर दी. अब ये जो प्रिएस्ट का सन है तो ये शूज सॉक्स सब कुछ पहन रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रिएस्ट होते थे उनके बच्चे शूज नहीं पहना करते थे और वो बेयर फुटेड रहते थे, बिना चप्पल जूतों के रहा करते थे, या फिर वो वुडन लकड़ी का चप्पल पहना करते थे. लेकिन आज भी जो रैग पिकर्स हैं जो राइटर के पड़ोस में हैं, जैसे वो अपने पड़ोस के बच्चों को याद करने लगती हैं कि इन लोगों का तो सिचुएशन, मतलब उस बच्चे ने प्रेयर की थी, मे बी प्रेयर गॉडेस ने सुन लिया, अब इन लोगों की प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई, ये लोग शू स्लीपर पहनने लगे हैं. लेकिन जो मेरे पड़ोस में अभी भी रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले हैं, तो उनके पास तो अभी भी शूज़ नहीं है, वो लोग शूज़ नहीं पहनते. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on periphery of Delhi at miles away from it metaphorically. Because of being familiar with rag pickers, I went to Simapuri. It is a place on the outer side of Delhi. This place is symbolically very far from Delhi. इसका मीनिंग ये है कि फैसिलिटीज़ जो दिल्ली में हैं वो उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. People living in सीमापुरी आर इलीगल रेजिडेंट्स. जो लोग सीमापुरी में हैं वो इलीगल रेजिडेंट्स हैं. दे हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971. ये लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे. साहिब हैड ऑल्सो कम फ्रॉम देयर. साहिब भी वहीं से आया था. दैट टाइम इन 1971 सीमापुरी वॉज अ जंगल. उस समय ये जो सीमापुरी प्लेस है वो जंगल था. इट इज़ स्टिल अ जंगल बट ऑल द स्पेस इज फील्ड. अभी भी वो जंगल ही है लेकिन सारे स्पेस वहाँ के भरे हुए हैं. यानी कि अभी भी वो जंगल है लेकिन वहाँ पे ये जो इलीगल रेजिडेंट वगैरह हैं इस टाइप के लोग तो वहाँ पे हैं. It is structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage drainage or running water, live 10,000 rag pickers. The houses are made of mud. Their roofs are of tin and tarpaulin. The area is without sewage drainage or tap water. About 10,000 rag pickers live at सीमापुरी. ये जो अभी भी वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे लिविंग लाइक एक डिसेंट लिविंग लाइक सिचुएशन नहीं है. जो हाउसेस हैं वो मड के बने हुए हैं. जो रूफ्स हैं वो जो छतें हैं वो टीन की है या फिर उस पर तिरपाल वगैरह डाला गया है. जो एरिया है वहाँ पे कोई सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, टैप वाटर की फैसिलिटी नहीं है. और सीमापुरी में 10,000 लगभग ये जो रैग पिकर्स हैं कचरे बीनने वाले वहाँ पे रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. They are living there since last 30 years. They do not have any identity card. They do not have any permit, but they have their ration card. With the help of ration card, they get their voter card. Ration card helps them to buy grains at cheaper rate. It is more important to get food than an identity. अब क्या है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं लास्ट 30 ईयर से उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है. बस उनको वहाँ मतलब उनके पास कोई परमिट नहीं है. बस उन लोगों के पास राशन कार्ड है
और राशन कार्ड की हेल्प से उनका वोटर कार्ड है, और राशन कार्ड उनको हेल्प करता है, ये जो चीपर रेट पे मतलब ये मिलते हैं ग्रेन वगैरह अनाज वगैरह वो मिल जाते हैं, और उन लोगों के लिए उसी में वो लोग खुश हैं कि आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. The writer asked a group of women why they had left their green fields and a bank of river. One woman replies that here they get food for their families, so we can go to sleep without pain or in our stomach. Here the phrase aching stomach has been metaphorically used. It means the pain of hunger. It is more important to get food than living in green field that does not give food. ये जो राइटर हैं तो एक वुमेन का ग्रुप रहता है, तो उनसे पूछती हैं कि आप लोगों ने अपना जो ग्रीन फील्ड था, यानी कि ढाका बांग्लादेश से आए थे लोग, तो उतना ग्रीनरी जो था रिवर के पास उसको छोड़ के यहाँ क्यों आए। तो उनमें से एक वुमेन रिप्लाई करती है कि यहाँ हमको फूड मिलता है, हमारी फैमिली को यहाँ खाना मिलता है, और यहाँ हमारे पेट में बिना यानी कि जो हंगर वाला दर्द होता है बिना उसके हम लोग सो पाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खाना एज़ कम्पेयर टू ग्रीनरी में रहने के। कितना भी अच्छी जगह रहने को मिल जाए, अगर खाना ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही वो वुमेन कहती है कि यहाँ एटलीस्ट हमें खाना तो मिलता है।